Let's start, Ji. So now this is the plan for today. This is the plan for today. Class, keep quiet. This is the plan for today. So today I'll try and cover up the theoretical part or the descriptive part of this chapter within 20 minutes. ठीक है? So I'll have to rush through it and you need to understand कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. The descriptive part कि what is a budget and how are budgets made. इसका जो खाली डिस्क्रिप्शन है. फिर उसके बाद जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे क्वेश्चन के साथ वो इसके बाद स्टार्ट करेंगे. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉफिट प्लानिंग. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ बजट? जी, एनी आइडिया व्हाट इज अ बजट? प्लानिंग फॉर coming years. Okay, planning for coming years. Anyone else? Amount allocated for future. Amount allocated for what? For expenditures and revenue for a business or for any organization. Let's put it like this. So now budgets would be when you are planning for the coming years. So you make an estimate of all the revenues which you are getting and of all the expenses which you will be making, take in a particular organization. So understand why organizations budget and the process they use to create budgets. So now budget is a detailed quantitative plan. So you need to understand it's a quantitative plan. ये words में नहीं है, quantities है. You will write down कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे जाएंगे, क्या quantities होंगी, कितना किलो मटेरियल लगेगा, कितना क्या लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना घंटे काम करेगा, each and everything. And it's all planned, estimate है आने वाले सालों का या एक साल का या 5 महीने का, whatever is the case. So a budget is a detailed quantitative plan for acquiring and using financial and other resources. Acquiring जब आपके पास resources आएंगे, and using जब आप उसको लगाएंगे. ठीक है? So revenues and expenses. आपके पास चीज़ें आएंगी, revenues हो गए आपके, जब आप पैसों को लगाएंगे expenses हो गए. Over a specified forthcoming time period. So that means it has a time period. 1 महीने का बना रहे हैं बजट, 6 महीनों का, 1 क्वार्टर का, 2 महीनों का, 1 वीक का, 1 साल का. It will depend. The act of preparing a budget is called budgeting. ये जो आप बजट बनाते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं budgeting. The use of budgets to control an organization's activity is known as budgetary control. So when somebody tells you कि we have budgetary controls in place, that means we make a budget, then we control the situation according to the budget. यानी आप बजट करते हैं मेरे 10 रुपए लगेंगे और आपके पैसे कल लगे 15 रुपए. So you will compare with the budget. 15 लगे, कहा था आपने कि 10 लगेंगे, अभी 15 लग गए, क्यों लग गए? So you control it. So this is called as budgetary control. Got this idea, class? Got it? Okay. In the start of the course, we said this course is all about planning and control. ये दो बातें की थी, ठीक है? This is a very good example of it. Planning and control. Budget में हम लोग planning कर रहे हैं, इसके बाद हम control करते हैं through what we call as variance, which is not part of this course, but a part of the advanced level of this course, which is advanced management accounting. So what is planning? It involves developing objectives and preparing various budgets to achieve these objectives. आप लोग objectives देखते हैं कौन कौन से, उनको अचीव करने के तरीके, उनको अचीव करने के लिए तरीके जो आप बनाएंगे आप वो बजट्स के थ्रू करेंगे. ठीक है? किस तरीके से मैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करूंगा. कंट्रोल, जब आप वो काम कर लें एक्चुअली, फिर बजट को और एक्चुअल को सामने रखें, कंपेयर करें और रीजंस देखें कि व्हाई इट्स नॉट सो. Involves the steps taken by management that attempt to ensure the objectives are attained. कि वो काम हो गया कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर हो गया तो फिर किस किस ने काम किया उसको इंसेंटिव देते. Advantages of budgeting. Think about and plan for the future. तो सबसे पहली तो बात यह है कि when you make a budget, so you are planning for the future. आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, so this is something good. You plan for the future. Then if you are planning something, you are making a budget, तो कोई ऑब्जेक्टिव होगा जिसको आप अचीव कर रहे होंगे, कोई काम होगा जो आपने करना है, उसके मुताबिक आप बजट बना रहे हैं. So you are planning and you are controlling, defining goal and objectives. आपने goal and objectives define करते हैं. Uncover potential bottlenecks. जब आप वो फिर बजट करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से ऐसी चीजें जो आपको नहीं वो काम करने दे रहे जो आपने कहा था करेंगे. कंस्ट्रेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रेंट्स आएंगे, आप उनको मैनेज करेंगे. सो अनदर एडवांटेज, मीन्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्स. आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं जो कि आपके पास हैं. आपको पता होता है कि मेरे पास 50 रुपए आएंगे, तो इन 50 रुपए को कहाँ कहाँ पर लगाऊं, 10 यहाँ पे लगाऊं, 10 वहाँ पर, 10 वहाँ पर. ठीक है? सो यू एलोकेट रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली. कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज.
पहले से आपने सारा प्लान किया होता है कि मैंने क्या क्या काम करना है। सो ऑल दी एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड, सारी की सारी एक्टिविटीज आपके साथ लिखी होती हैं कि आपने क्या क्या काम करेंगे, एंड देन यू कम्युनिकेट दिस प्लान टू अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीबडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द प्लान। सब इस प्लान के मुताबिक काम करेंगे। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो सारा काम उसी तरह हो, कुछ काम होगा कुछ काम नहीं होगा, तो फिर आप करेक्टिव एक्शंस लेंगे। Responsibility accounting. Now this is a term once again which we'll do in detail in the advanced course. अभी आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि what is responsibility accounting. याद रखें, someone is held responsible for something only if that person has a control over it. तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी मैनेजर को उस वक्त रिस्पॉन्सिबल करना है जब उसका कंट्रोल हो उसके ऊपर। अगर किसी मैनेजर का कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज़ के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग मैनेजर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज आइटम्स एंड ओनली दोज आइटम्स ओवर विच मैनेजर कैन एक्चुअली कंट्रोल टू अ सर्टेन सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। So if you have a control over something, you will be held responsible for that. If you don't have control over something, you will not be held responsible for that. ठीक है? याद है वो स्पाइडरमैन का, याद है डायलॉग जो था बहुत मशहूर? With great power comes Exactly. With great power comes. ठीक है? So responsibility will come to you only. You will be responsible only if you have the control over it. If you have the power to control it. ठीक है? तो याद रखें, मैनेजर तब रिस्पॉन्सिबल होगा जब उसके पास पावर होगी वो काम करने की। नहीं तो अगर नहीं है उसके पास पावर, यू कैन नॉट होल्ड दैट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ द बजट। बजट कितने टाइम पीरियड का होना चाहिए? हमने कहा स्पेसिफाइड। इट कैन बी एनीथिंग, साल, 5 महीने, 6 महीने, 1 महीना, क्वार्टर, ठीक है, हाफ ईयरली, इट कैन बी एनीथिंग। ऑपरेटिंग बजट आर नॉर्मली एनुअल बजट्स। सो एनुअल ऑपरेटिंग बजट में बी डिवाइडेड इनटू क्वार्टरली और मंथली बजट्स। इसको भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ। पहले 1 साल का बजट करूँ, उसके बाद उसको डिवाइड कर दूँ 6 मंथ्स, फिर उसके बाद डिवाइड कर दूँ मंथली, उसको बाद डिवाइड कर दूँ वीकली। सो वी कैन डू दैट। A continuous budget, then there is something which is called as continuous budget. ठीक है? Now what is a continuous budget? Continuous budget जो कि कंटिन्यू होता रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लोज नहीं होता। जो क्लोज कैसे नहीं होगा? उसका टाइम पीरियड तो खत्म हो जाएगा। देखें, अगर ये 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था 2024, सो इट्स सपोज टू एंड ऑन December 31st 2024. सो हाउ विल इट बी कंटिन्यूस? तो इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लोज होगा और यहीं पे दोबारा ओपन हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 25, 1-2 महीनों के लिए शायद। दैट्स इट। अच्छा, अब देखिए जी, अ कंटिन्यूस बजट इज अ 12 मंथ बजट। पहले तो एक 12 महीने का होता है, लेकिन अब गौर से सुने होता क्या है, गौर से सुने होता क्या है। दैट रोल्स फॉरवर्ड, रोल्स फॉरवर्ड। इसका मतलब जब यहां से जनवरी एंड हो, फरवरी हो गया, 1 महीना गुजर गया, बाकी कितने महीने रह गए? 11 नहीं, 11 नहीं रहे। अब हम क्या करेंगे, यहां पे 1 महीना खत्म, यहां पे 1 महीना ऐड हो गया। अब बताएं आप कितने महीने का है? 12। इसका मतलब ये कभी खत्म नहीं होता, कंटिन्यूस। अब अगर अगला महीना खत्म हो गया मार्च, यहां पर अगला महीना ऐड हो जाएगा फेब, 1 साल फिर पूरा। तो ये 1 साल ही रहेगा, ये कभी भी 1 साल से कम नहीं होगा, ये कम ही नहीं होगा 1 साल से। इट विल रोल ओवर। हाँ, आप देखें, 1 महीना यहां पे काम आपने कर लिया ना, ठीक है, 1 महीना काम कर लिया, यहां पे अगला महीना आप ऐड कर देंगे, फिर 12 महीने हो गया। तो अब आपके पास फिर 12 महीनों का प्लान मौजूद है। 1 महीना खत्म हुआ, अगला महीना ऐड कर दिया, 12 महीने का प्लान मौजूद है। यानी हर वक्त आपकी ऑर्गेनाइजेशन का 12 महीने का प्लान मौजूद होगा। हाउ कैन वी ऐड? वी विल जस्ट बजट फॉर द नेक्स्ट मंथ and we will add it for with the remaining 11 months. Now I have once again 12 months. But you made the budget first, so why you added it? Because it's supposed to have a plan for the upcoming 12 months. If 1 month expires, 1 month is added, so it will still be for 12 months. ठीक है? This is the beauty of this budget. सर, तो हम हर महीने एक नया बजट बनाएंगे। Exactly, हम हर महीने एक नया बजट बना रहे हैं जो कि 12 महीने का है। ठीक है, 11 को तो बना हुआ, 1 महीना एक्स्ट्रा ऐड कर। इससे फायदा क्या होगा? ओके जी, इसका फायदा क्या होगा? नजम, पे अटेंशन, रामेश, मोइज एंड मलाइका, पे अटेंशन।
इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास हर वक्त अगले एक साल की प्रोजेक्शंस पड़ी हुई हैं, एस्टिमेशंस पड़ी हुई हैं कि अगले एक साल में क्या करने वाले हैं आप या क्या होने वाला है, विच मीन्स यू कैन एस्टिमेट how much money would come in the organization and how much money would flow out of the organization. ठीक है, आपके पास प्लान है 12 महीने का, यानी आपका प्लान कभी भी खत्म नहीं हो रहा. यू आर प्लानिंग ऑल द टाइम फॉर द नेक्स्ट 12 months. सर तो ये हर एक मंथ या हर एक दिन ये अपडेट? नहीं, हर मंथ, हर दिन नहीं, हर मंथ. ठीक है, नहीं, ये हर बंदा तो नहीं बना रहा ना बजट. बजट कौन बनाता है? अब बजट कौन बनाता है? बजट कौन बना रहा है? इनटेक सबका है. अ बजट इज प्रिपेयर्ड विद द फुल कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स. सब बना रहे हैं, सबसे मैं आइडियाज ले रहा हूं. ठीक है, आइडियाज सबसे ले रहा हूं, तो सबका आइडिया बीच में है. इसको पता है कि चीजें किस तरह बनती हैं, सुपरवाइजर को. इसको पता है कि काम किस तरह होते हैं. उसको पता है कि 4C क्या करना है. ठीक है, हर एक अपना अपना काम है. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल मैनेजर्स, और सबका इनटेक लेकर मैं बजट बनाता हूं. ठीक है, इसका मतलब यह है कि मेरा बजट इज क्लोज टू रियलिटी. एक बंदा नहीं बना रहा कि मुझे बाकी कुछ नहीं पता कि यार कितनी क्लासेस रहती हैं, कितने दिन रहते हैं, वो मैं नजम से पूछ लेता हूं. ठीक है, नजम अकेला नहीं बनाता, नजम उससे पूछ लेता है कि कितनी रूम्स फारिग हैं. इसका मतलब इट इज एक्चुअल. हम जो बजट बना रहे हैं ये ज़्यादा अच्छा है, हमें अगला पता है कि अगला साल क्या होगा, सब बातें हमें पता है. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज डन. एंड दिस सॉर्ट ऑफ बजट वेयर एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिव बजट एंड सेल्फ इम्पोज्ड बजट. पार्टिसिपेटिव, हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है. सेल्फ इम्पोज्ड यानी आप अपना बजट खुद बनाएं, जैसे आप अपना सिलेबस खुद बनाएं. अब पॉसिबल तो नहीं है लेकिन चलें. अच्छा, आप अपना सिलेबस खुद बनाएं, आपको पता हो कि आपने क्या एक्टिविटी करनी है फॉर द नेक्स्ट 12 months. ठीक है, सो दिस इज लाइक दिस सेल्फ इम्पोज्ड बजट और पार्टिसिपेटिव बजट. एडवांटेजेस. अब अगर आप अपना बजट खुद बनाएं, सो विल यू बी मोटिवेटेड टू डू इट? जाहिर सी बात है. और अगर आप ना कर सके, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल? योरसेल्व्स. ठीक है, तो ये इसकी अच्छी बातें हैं. Individuals at all levels of the organization are viewed as members of the team while judgments are valued by top management. आपका जो भी इनटेक है वो इस बजट के अंदर मौजूद है. इसका मतलब आपका जो पावर है या आपका जो से है वो काउंट करता है. ठीक है, whatever you say. Budget estimates prepared by frontline managers are often more accurate than estimates prepared by top managers. अब जो frontline managers होते हैं they know the exact situation. टॉप मैनेजर्स को पता नहीं होता क्योंकि वो लोग दे डोंट कम इनटू कांटेक्ट विद कस्टमर्स, तो इस वजह से वो बजट ज़्यादा अच्छा होता है. मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपने खुद अपने लिए बजट बनाया है. अब अगर कोई चीज़ खराब हो गई तो फिर आप लोगों ने बजट बनाया तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते. सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड बजट्स. नाउ मोस्ट कंपनीज डू नॉट रिलाई एक्सक्लूसिवली अपॉन सेल्फ इम्पोज्ड बजट्स. अब खाली यही नहीं होता क्या है कि टॉप मैनेजर डिसाइड करता है, वो आपको आइडिया दे देता है, बाकी काम आप लोग कर लेते हैं. वो आइडिया देता है यार हमें बजट चाहिए लेकिन हम लोगों ने ऐसा करना है कि प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है और कुछ नई ब्रांचेस खोलनी है. अब मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रांचेस और कॉस्ट को कम करना है. मैंने आपको 3 आइडियाज दे दिए. अब आप इस आइडिया पे सोच कर बजट बनाएं कि क्या क्या काम करेंगे हम लोग. ठीक है, सो इन द सेंस दैट टॉप मैनेजर्स यूजुअली इनिशिएट द बजट प्रोसेस बाय इशूइंग ब्रॉड गाइडलाइंस. मैंने आपको गाइडलाइंस दे दी. अब बाकी आप सोचें इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट्स और सेल्स. बाकी आप लोग सोचें किस तरह करना है. ठीक है, गॉट द आइडिया? ओके, ह्यूमन फैक्टर्स इन बजटिंग. अब काम सारा लोगों ने करना है. ठीक है, सो देयर आर सम ह्यूमन फैक्टर्स इन बजटिंग. ह्यूमन टच भी बीच में होना चाहिए. टॉप मैनेजमेंट मस्ट बी इंथ्यूजियास्टिक. सबसे पहले तो जो आपको आइडिया दे रहा है, गाइडलाइंस दे रहा है, उसका इंथ्यूजियाज्म जरूरी है. वो जरूर आपको कुछ ना कुछ बताए. नहीं तो मैं आपसे कहूँ यार बस बना लो, जो बजट बनाना है बना लो, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे बस चलो सेल्स 100 यूनिट्स करने हैं, आसान है, सब कर लेंगे आराम से. ठीक है, सो आई मस्ट बी इंथ्यूजियास्टिक इन ऑर्डर टू मेक यू वर्क. इफ आई एम नॉट इंथ्यूजियास्टिक यू वोंट वर्क. मैं रोज आऊँ, मैं कहूँ अच्छा क्लास एक्सरसाइज नंबर 3 इसको कर लें आज के लिए, दिस इज इनफ, लेट्स गो have party, ठीक, have a break. So it cannot be done like this. I need to be enthusiastic so that you are on your toes and you work as well. Top management must not use the budgets to pressure employees, but it should not be used to pressurize you. ठीक है, नहीं तो फिर वही होगा जो उस लड़के ने किया था, याद है?
याद है? सो डोंट डू दैट, ओके? वो एक था, बाद में बताऊंगा, ओके? सो डोंट डू दैट. एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड आउट, थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट. सो इवन इफ यू आर प्रेशराइज्ड टू डू समथिंग, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट ऑफ इट. एंड देन इट इज पॉसिबल कि क्या पता मैंने जो बजट आपको बना के दिया वो बहुत ज़्यादा, वो रियलिस्टिक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, रियलिस्टिक नहीं है, रियलिज्म के ऊपर नहीं है कि वो हो सके, प्रैक्टिकेबल नहीं है, ठीक है? तो चाहिए कि बजट प्रैक्टिकल बने, जो हो सके, पेसिमिस्टिक बहुत ज़्यादा ना, सॉरी ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा ना हो. Top management must not use the budget. Okay. Highly achievable budget targets are usually preferred when managers are rewarded based on meeting budget targets. तो फिर मैं क्या करता हूं, आपको एक चैलेंजिंग चीज देता हूं, और जब आप वो लोग करते हैं तो फिर आपको देता हूं इंसेंटिव्स. अच्छा, आपने ये कर लिया, ये लें आपका इनाम. आपने ये काम कर लिया, ये लें आप एक सैलरी बोनस, ये लें आपको एक ट्रिप फॉरेन, ये लें आपको मैंने एक महीने का गाड़ी इस्तेमाल करें, आपको क्लब मेंबरशिप दे दी मैंने एक महीने की. थिंग्स लाइक दिस. बजट कमिटी. अब बजट बनाता कौन कौन है? अ स्टैंडिंग कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल पॉलिसी मैटर्स रिलेटिंग टू द बजट एंड कोऑर्डिनेटिंग द प्रिपरेशन ऑफ द बजट. सो देयर इज अ कमिटी व्हिच विल मेक अ बजट. ठीक है, एक कमिटी होगी, उनका काम क्या क्या होगा? ओवरऑल पॉलिसी मैटर्स, पॉलिसी क्या क्या है उसके मुताबिक बजट बनाना है, एंड कोऑर्डिनेट द प्रिपरेशन ऑफ द बजट, जो इस बजट को बनाने में कोऑर्डिनेशन करेगी कि हाँ बजट बन जाए. दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट 3.5 classes. Okay, mashallah, these are all the budgets. We will start with sales budget. On the basis of sales budget we will make production budget. On the basis of production budget we will make direct material, direct labor, manufacturing overhead budget. ठीक? अच्छा, फिर उसके बाद we will make selling and admin budget, और फिर इन सब के मिलाकर वी विल मेक अ कैश बजट. एक बजट थोड़ा सा स्टैंड आउट होगा, फिनिश इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स का बजट या इन्वेंट्री का बजट. ये सब जब बन जाए फिर हम बनाएंगे बजटेड इनकम स्टेटमेंट, बजटेड बैलेंस शीट. सो हाउ मेनी बजट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो देयर आर 10 बजट्स. हम बिजनेस करेंगे ये चीज बनाए, ये अकाउंटेंट ओके. नहीं मेरे पास अकाउंटिंग के पैसे नहीं है, आपके पास सॉफ्टवेयर है. सर ये नो है सर, वो तो सॉफ्टवेयर नहीं, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी आप बनाएंगे? एक बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट और एक बनाएंगे बैलेंस शीट. ठीक है, गॉट द आइडिया? गॉट इट? ओके, पॉज करें, टेक अ 2 minutes break and then we'll start. Let's start. So now let's start with the budget. Now class, pay attention. Let's start with the budget. So the budget will start from sales budget. याद रखें, sales would decide कि क्या काम करना है. Pay attention. Okay. So now your sales would decide कि आपने क्या क्या काम करना है. ठीक है? And here we go. This is your question. In this question, all of the budgets are interrelated, because we said on the basis of sales we will make a production budget, on the basis of production we will make a direct materials, then direct labor and overhead budget, और फिर उसी के basis पे बाकी सारे budgets बनेंगे. तो ये सारे interrelated हैं. In exam class, Moez, please pay attention. Moez and Ramesh, please pay attention. Please come forward. Thank you. Okay, in exam, if there is a one particular question and you have all the budgets inside that one question, then if you make a mistake in the first one, it will carry forward till the last budget. Keep this thing in your mind. और अगर मैं बजट अलग अलग क्वेश्चन दे दूं तो फिर तो ठीक है, एक अगर गलत भी हो गया तो बाकी सही हो जाएगा. ठीक है? So you need to be a bit careful. ठीक? Let's start, G. So this is your first budget, and this is the data for the first budget, and I cannot find a duster over here. Do we have a duster over here, Aris? Thank you. Okay, so now let's have a look at it. Let's look at the data. This is the data. It says Royal Company is preparing budgets for the quarter ending June 30th. So that means this is quarterly budget, और ये किस किस महीने का है?
अप्रैल मई जून, ठीक है। सो दिस इज फॉर अप्रैल मई एंड जून, अप्रैल मई एंड जून, ठीक है। जून के साथ दिस इज द टोटल फॉर द क्वार्टर एंड वी माइट हैव टू मेक अ बजट फॉर जुलाई एंड माइट मेक अ बजट फॉर मार्च, ठीक है। ओके, सही है। स्टार्ट करें अभी। रॉयल कंपनी इज प्रिपेयरिंग बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून 30th। जून पे क्वार्टर खत्म हो रहा है, अप्रैल मई जून है हमारे पास। बजटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स आर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। 5 मंथ की उसने आपको सेल्स दे दी हैं। दीज आर योर एंटिसिपेटेड सेल्स, एक्सपेक्टेड के सेल्स कितनी होंगी। द सेलिंग प्राइस इज 10 पर यूनिट। इफ द सेलिंग प्राइस इज 10 per unit and these are the sales, how much revenue you would get? Multiply with the units. So the number of units sold and then you need to multiply this with the selling price per unit, ठीक, selling price per unit. Now the selling price per unit, is it the same throughout the quarter? No, sir. Is it the same throughout the quarter? Yes, sir. Yes? Okay. So it's same throughout the quarter. 10, 10, 10, 10, 10. Okay. Now the number of units sold in May. May में आपने कितने, अप्रैल में आपने कितने यूनिट सेल किए? 20,000. May 50,000. June 30,000. So that means for the whole quarter it will be 100,000. और पर यूनिट कितना लिखूं? 10. Okay. For July it will be 25,000 and they have also given data for August. For August it is 15,000 and per unit is 10. Why are we taking July and August? If they have given the data, so it might be used somewhere. मैंने लिख दिया, अगर नहीं इस्तेमाल हुआ तो बस ठीक है, 2 लाइन्स मेरी ज़ाया हो गई, otherwise it's not a big issue. अच्छा, let's do it, करते हैं जी। So now sales. So now sales for the month of March, I cannot calculate. Leave it. For April, 2 lakh. For May, for June, total for the quarter 1 million. For July 250,000. For August 1,50,000. Clear so far? So this is your first budget which is called the sales budget. ठीक है, एक बजट हो गया सेल्स का। Let's move on. All sales are on account. सब ऑन अकाउंट हैं। ऑन अकाउंट मीन्स अकाउंट्स रिसीवेबल, सही है। रॉयल्स कलेक्शन पैटर्न इज गिवन। कलेक्शन पैटर्न मीन्स द वे यू विल कलेक्ट द मनी, ठीक है। किस तरह ये अकाउंट रिसीवेबल आपको कन्वर्ट इनटू कैश, हाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू कैश। 70% कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल, यानी जिस महीने में सेल की 70% उसी महीने में आपको मिल जाएगा। 25% कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग सेल, 25% मिलेगा आपको अगले महीने में। 5% अनकलेक्टेबल और 5% जो है वो आपको नहीं मिलेगा। द March 31st अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस ऑफ 30,000 विल बी कलेक्टेड इन फुल। जो March 31st को आपके पास बैलेंस आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल का, वो कितना है? 30,000। वो सारा मिलेगा, वो सारा का सारा आपको मिलेगा। तो वो कब मिलेगा आपको? वो कब मिलेगा? अप्रैल में 70% मिलेगा, पूरा मिलेगा अप्रैल में। जी क्लास, अप्रैल में पूरा मिलेगा। सिर्फ 30 का 70 मार्च में जाएगा और बाकी 25 सर फुल मिलेगा। March 31st accounts receivable. If this is my accounts receivable account, on March 31st the balance is how much? 30,000. इसका मतलब March 31st पे कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग। ये March 31st का क्लोजिंग है, तो ये अप्रैल का ओपनिंग बन जाएगा। ओके, ये ओपनिंग हो गया अप्रैल 1 अप्रैल को 30,000। और वो क्या कह रहा है कि ये
सारा आपको मिल जाएगा। तो ये सारा आपको कब मिलेगा फिर? अप्रैल या फर्स्ट को, या पूरे मंथ में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके। सो नाउ कैश कलेक्शन, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैश कलेक्शन। अगर उसने आपको बोल दिया कि कलेक्टेड इन फुल, इसका मतलब यह है कि आपको सारा का सारा मिल जाएगा। नॉर्मल पैटर्न ये है कि 70% मिलता है सेम मंथ में, 25% नेक्स्ट मंथ में, और 5% नहीं मिलता। तो अगर ये मार्च 31 का है, यानी मार्च के महीने का बकाया है, तो मार्च के महीने का बकाया आपको कब मिलता है? अप्रैल में। सारा नहीं मिलता ना, 5% नहीं मिलता, 5% नहीं मिलता। तो ये सारा मिलेगा, ये सारा मिलेगा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये फुल रिकवर्ड रिसीव्ड। ठीक है, ओके। नाउ कैश कलेक्शन 70% कलेक्टेड, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मंथ में? अभी करते हैं, अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ओके, सो कैश कलेक्शन 70% मिलता है सेम मंथ में, 70% सेम मंथ, सेम मंथ। 25% फॉलोइंग मंथ, 25% फॉलोइंग मंथ। ठीक, अब आ जाए इधर जी। सेल आपने अप्रैल में कितनी की? अप्रैल में कितनी सेल की? अप्रैल 2 लाख। 2 लाख में से कितना सेम मंथ? 70% ऑफ 2 लाख इज 140,000। ये सेम मंथ मिल जाएगा। 20% कब मिले, सॉरी 25% कब मिलेगा? नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ कौन सा है? नेक्स्ट मंथ मई। 25% इज हाउ मच? 50 sir, 50. 60 to 11. 60 to 50 uncollected balance. 2 lakh is 75%, right? 70%. 70%. 5% uncollected So balance. basically, 2 lakh का 70% would be April and बाकी 30%. नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग मंथ। और कितना परसेंट आएगा? ये क्या लिखा है? 25%। सो 25% ऑफ 200,000 इज 50. ओके, 50,000 यहां पे आ गया। ठीक, क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट मे। सेल्स आर 500,000। इसका सेम मंथ में कितना मिलेगा? 70%। 70% कितना हो गया इसका? 350,000। सही है। इसका 25% कब मिलेगा? जून में। 25% कितना बना? 125,000। क्लियर? जून। सेल्स कितनी है? 3 लाख। 3 लाख का कितना परसेंट इस मंथ में मिलेगा? 70% इज 210,000। बाकी कब मिलेगा? जुलाई में। जून के बाद जुलाई है ना, कितना मिलेगा? 75,000। ये ले, जुलाई। जुलाई में कितनी सेल की? 250,000। इसका कितना सेम मंथ में मिलेगा? 70%, विच इज इक्वल टू 175। रिमेनिंग 62,500. अगस्त। अगस्त का कितना सेम मंथ में मिलेगा? 150,000 की सेल है, कितना परसेंट? 105,000। अगला मंथ बनाने की जरूरत नहीं है, सितंबर बहुत दूर चल जाएंगे, हमें सिर्फ 3 मंथ्स का बनाना है। ठीक है, क्लियर? ओके। अब आ जाएं उस एक इंफॉर्मेशन पे जो इसके अंदर मैंने नहीं लिखी, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज मार्च 31 का बैलेंस। ये मार्च 31 का बैलेंस 30,000 कब मिलेगा? अप्रैल में। और कितना मिलेगा? फुल 30,000 इन फुल। इसका मतलब हुआ, गौर से देखिए जी, व्हाट विल बी माई कैश कलेक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल? 340 or 370. 170. What is my cash collection in May? What is my cash collection in June? 330. What is my cash collection for the quarter? ये जो टोटल प्लस करेंगे तो करें। 570. 95,000.
905 905,000। ये आपने कैसे फाइंड आउट किया? तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है, इस तीनों को ऐड कर दिया। इसका एक और तरीका भी तो हो सकता है, क्या इन तीनों को ऐड कर दें, इन तीनों को ऐड कर दें और उसका टोटल नहीं आना चाहिए। लेट्स ट्राई, देखें, चेक करें सही आ रहा है कि नहीं, चेक करें, करें करें। क्या बात आपने कैलकुलेशन में गलती की हो? लेट्स फाइंड आउट। 140 प्लस 350 प्लस 210 7 lakh। 30 plus 50 80 80 plus 125 205 205 plus 700 905, ठीक है, ओके गुड। नाउ जुलाई 175 plus 75 250 105 plus 62.5 क्लियर सो फार? कैश कलेक्शन का बजट भी आपका बन गया जी। हाँ देखिए, वो आपसे कह रहा है कि क्वार्टर का बताएं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग यू। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, गौर से देखें। व्हाट विल बी द टोटल कैश कलेक्शंस फॉर द क्वार्टर? क्वार्टर में कितने पैसे आपके पास आएंगे बताएं जी। ये वाला, अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछूं व्हाट विल बी द कैश कलेक्शन फॉर द मंथ्स ऑफ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो फिर आप 1 2 3 4 5 सबको ऐड कर देंगे। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। इन दिस केस द आंसर इज 905,000। अच्छा नहीं आएगा इंशाल्लाह जी, सही है, ओके। लेट्स मूव ऑन। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कितना करना है देखें, पे अटेंशन। प्रोडक्शन इज अकॉर्डिंग टू सेल्स। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 मोबाइल फोन बिकेंगे तो आप कितने मोबाइल फोन बनाएंगे? एक मिनट जी मोहित, कुछ यूनिट ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। 10 तो बनाएंगे ही बनाएंगे, कुछ यूनिट ज्यादा बनाएंगे। वाई? कुछ मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए, क्या पता ज्यादा बिक जाए। ये तो एस्टिमेट है ना, ये तो एस्टिमेट है। तो आपने एस्टिमेटेड कुछ चीजें ज्यादा रखनी है, क्या पता एक्चुअल काम ज्यादा हो जाए, सही है। सो दिस इज द आइडिया। प्रोडक्शन मस्ट बी एडिक्वेट to meet budgeted sales and provide for sufficient ending inventory। कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। Got the idea? Got the idea? Okay. Shamir. Okay. Let's start जी, let's start। नजम, वैसे अगर आपको कंडक्टर की जरूरत हो किसी की तो okay, let's start जी, let's start। The management at Royal Company wants ending inventory to be equal to 20% of the following month's budgeted sales in units। इसका क्या मतलब? Ending inventory must be equal to 20% of the following month's sales budget। उसकी 20% इन्वेंट्री आपके पास क्लोजिंग में होनी चाहिए। इसका मतलब आप कितना प्रोड्यूस करेंगी? अप्रैल में आप कितना प्रोड्यूस करेंगे, कितने यूनिट्स? जी नूर, हाउ मेनी यूनिट्स यू विल प्रोड्यूस? It's the same one। 4,800। 24,000 जी, 4,800 24,000। और कोई आइडिया?
दैट्स इट। आप गौर से सुने जी, गौर से सुने। आप अप्रैल में कितने यूनिट्स बेचेंगे? 20। ये तो बनाने ही बनाने हैं। उसने कहा एडिशनल कितने बनाने हैं? 20%। किस चीज के? किस चीज के? क्वेश्चन में क्या लिखा था? नेक्स्ट मंथ की बजटेड सेल्स के। नेक्स्ट मंथ की सेल्स कितनी है? 50,000। इसका 20% अभी से बनाना है। इसका 20% कितना आएगा? 10,000 वो हो गया, 20,000 ये हो गया। कितना बनाएंगे? 30,000। अच्छा, अब जरा और गौर से सुनो। 30,000 नहीं, अभी सारी समझ नहीं। रुके। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास पहले से 5,000 पड़े हुए हैं, तो अब कितना बनाएंगे? 5,000 पहले से पड़ेंगे। देखें, 20 आपने एक बनाने, 20% इसका बनाना है 10, आपने बनाने हैं 30, लेकिन 30 में से 5 पहले से हैं, तो फिर कितना बनाएंगे? 25। आप समझ आ गई? अब इसको इस तरह देखें, अब इसको इस तरह देखें। अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। इन्वेंट्री का अकाउंट, इन्वेंट्री का अकाउंट आपके पास पहले से जो पड़े हैं उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग। पहले से 5,000 पड़े हैं, ठीक। प्रोडक्शन आप इस साल कितना कर रहे हैं? लेट्स से फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं? 28 कर रहे हैं, और फिर आपको कह रहा है कि 20% इसका भी बनाना है 10। आप 30 प्रोडक्शन कर रहे हैं। 30 आपने प्रोड्यूस किए, 5 पहले से, तो 35 हो गए। 35 में से कितने बिकेंगे? 20। बाकी कितने रह गए? 15। ठीक। इस 20% ऑफ मे? नो। तो 20% ऑफ मे कितना आता है? 10। एक और काम करें, इसको पहले इधर लिख लें, क्लोजिंग को पहले लिख लें। 10 क्लोजिंग को पहले से लिख लें। प्रोड्यूस तो 20 ही करने हैं ना, इसको लिख दें। सेल 20 ही करने हैं। इस फिगर को आप देखें क्या करना है। 10 प्लस 20 30, दिस मस्ट बी 30। 30 माइनस 5 25, और 25 में से 20 ये हो गए और 5 ये हो गए, 25 हो गए। 20, या इसको डायरेक्ट 25 लिख दें। बस आपकी मर्जी, इसको इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, आंसर दोनों सेम है। अगर कोई अकाउंटेंट होगा, अकाउंटेंट वो इस तरीके से करेगा। अगर किसी को मैथ्स अच्छी लगेगी वो इस तरीके से करेगा। आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे तो सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग कौन करके देगा? जो अकाउंटेंट रखना पड़ेगा ना, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें अब इसको। आइडिया आपको बता दिया। क्विक बुक्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड क्विक बुक्स? हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड क्विक बुक्स? नन ऑफ यू? क्विक बुक्स किस किसने इस्तेमाल किया? थोड़ा बहुत नाम सुना है, इस्तेमाल नहीं किया। सर उसमें सारे हो जाते हैं। पीच ट्री किसी ने यूज किया? थोड़ा बहुत पीच ट्री। अच्छा, अगर अब मैं आपको एक बहुत एडवाइस, बहुत फ्रैंक एडवाइस, unless you know these, learning all this or whatever I've taught you in this semester and whatever you've studied in the previous semesters about accounting will be useless almost if you do not know these, because when you go out, okay, there might be something even more advanced than this one, but right now this is used very commonly, and in good organizations you would find this. ठीक है? तो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ डू दीज थिंग्स, और कोशिश करें कि आपको एक कोर्स मिल जाए आज से कोऑर्डिनेटर, जहाँ पे आप इन चीज़ों को सीख सकें। ओके,
हाँ हर जगह मिल जाते हैं यार पर डेट, थैंक्स टू पाकिस्तान हर चीज़ पर डेट मिल जाती है। में भी ये जिन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है तो उसमें सिर्फ आपको एंट्री करने की जरूरत है और सारा सब कुछ बजट भी खुद बन जाता है सब कुछ। हाँ लेकिन आपको क्वेरी तो देनी पड़ती है ना, क्वेरी तो देनी पड़ती है। Okay, let's start class. Let's start now. So now, the management at Royal Company was sending inventory to be equal to 20% of the following month's budget sales in units. ये मैंने आपको समझा दिया है. On March 31st, 4,000 units were on hand. What does this mean? On March 31st, 4,000 units were on hand. March 31st को 4,000 यूनिट पड़े थे. ये March 31st के क्या हैं? Closing. March 31st है. जो आखिरी दिन होता है उस पे क्लोज होता है. अब अगर आपके पास क्विक बुक में AI भी हो और आपको ये ना पता हो कि ये क्या है तो वो काम नहीं करेगा. ठीक? ओके. सो you need to understand this first and then use the software. ठीक है? If you do not know this and use the software, once again useless. Okay. So March 31st 4,000 है. ये March 31st के 4,000 नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा? ओपनिंग. नेक्स्ट मंथ क्या आता है? अप्रैल. ठीक है? So what you can do is, if you want to write the closing balance, you can. But what I would do, I would rather first write opening inventory. और मैं कह देता हूं कि ओपनिंग इन्वेंट्री अप्रैल की मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री इज 4,000. ठीक है? ओपनिंग इन्वेंट्री फिर प्लस हम लोगों ने ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ क्या ऐड किया अभी थोड़ी देर पहले? प्रोडक्शन. जितना प्रोडक्शन करना है. ठीक है? ये ऐड किया. और ये किसके बराबर था? ये दो चीजें अगले मंथ की क्या? ना जरा दोबारा उस फॉर्मूले को गौर से देखें. ओपनिंग पहले से पड़े हैं 4,000. ठीक है? इस महीने कितना बनाएंगे? हमने कहा कि 20 तो बनाएंगे, साथ कुछ एक्स्ट्रा भी बनाएंगे, लेकिन मुझे अभी नहीं पता कि कितना बनाएंगे. ये दोनों बराबर हो जाएंगे. जो 20 सेल करूंगा ये मैं सेल करूंगा और इसके साथ एक क्लोजिंग भी चाहिए. क्लोजिंग कितनी चाहिए? 10. तो ये दोनों इन दोनों का टोटल इन दोनों के टोटल के बराबर होना चाहिए. तो अगर इसमें से मैं इसको हटा दूं तो फिर इसका मतलब प्रोड्यूस कितना करूं? 26. तो अगर इसका मैं फॉर्मूला बना दूं, अगर आपको फॉर्मूला आसान लगता है तो फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला क्या बनता है? ये क्या चीज है? सेल्स. ये क्या है? क्लोजिंग. सो सेल्स प्लस क्लोजिंग और माइनस क्या करूं? ओपनिंग. विल आई गेट दिस फिगर? देखें 20 प्लस 10 30 माइनस 4 26. ये फिगर आ गया. सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला. लेकिन अगर आपको ये अकाउंट का सिस्टम आता है ना ये, सो दिस इज द बेस्ट वन. स्टिल तीसरी बार बताया. यू डोंट गेट दिस. अच्छा अब चौथी बार यहां पे करके बताता हूं. ठीक है? अभी तो यहां पे लिख के बताया, अब यहां पे करके बताता हूं. सो दैट मीन्स ओपनिंग. मुझे बाकी समझ आ गई. ये जो सिस्टम आप कह रहे हैं ना, ये हम क्यों प्रेप करें? जब हमने लास्ट में 13,000 के दिए थे, हम करेंगे 13,000 यहाँ पे कहाँ पे है? हमने कहा कि 10,000 दिया था, फिर हमने 10,000 ऐड कर दिया था, तो हमारे पास 30,000 आ गई थी. हाँ. तो अब हम क्यों यहाँ पे 30,000 सेल नहीं था, मतलब प्रोडक्शन थी. लेकिन वो प्रोडक्शन 30 आप करेंगे ना तो फिर यहाँ पे क्लोजिंग ज्यादा आ जाएगी. जरा 30 करके देखें यहाँ पे प्रोडक्शन. 30 प्लस 4 इक्वल्स 34. 34 minus 20 equals 14. You want this to be 10, not 14. You want this to be 10. ठीक है? So if you want this to be 10, so write 10 over here, जो मैंने लिख दिया है. So that means 20 plus 10 equals 30, minus 4 equals 26. You need to produce 26 only. सर तो फिर वो पिछली वाली वर्किंग मतलब बिजनेस हो गई. यूजलेस नहीं हो गई. वो पिछली वाली वर्किंग आपको समझा रहा था कि कितना बनाएं, लेकिन अगर उस तरीके से बनाऊं तो ज्यादा बन जाएगा ना. मुझे ज्यादा नहीं बनाना, मुझे उतना बनाना है जितना अकॉर्डिंग टू माय प्लान चाहिए. ठीक है? ओके. क्लियर है? इसको यहां पे लिखूं, अभी तरीके से लिखता हूं ताकि आपको याद रहे. ओपनिंग और ओपनिंग के साथ आप लोगों ने बेसिकली सेल्स और क्लोजिंग को ऐड करना है. ठीक है? सेलिंग यूनिट्स को और क्लोजिंग को. सेल्स के यूनिट्स ऊपर लिखे हुए, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा, यहां पे नहीं लिख रहा. यहां पे मैं सिर्फ लिख रहा हूं ओपनिंग, क्लोजिंग और यहां पे लिख रहा हूं टू बी प्रोड्यूस्ड.
टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक, मैं करूंगा क्या, फॉर्मूला मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, दिस इज द फॉर्मूला, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, this will give me to be produced, units to be produced. Got the idea? Got the idea? Okay, let's solve it. Let's solve it. यहाँ पे फॉर्मूला छोड़ दिया ताकि आप गलती ना करें. So this is opening for April and this is closing for March. Closing for March would become opening for April. सही है? Closing for April would be opening for May. हाँ, लेकिन what would be the amount? How would you decide? 20%. How would you decide, Shamir? 10% का 1000 का 10%. 10% कहाँ पर है? 20%. हाँ, 20% किस चीज़ का लूँगा? 50,000 का. So 20% of 50,000 is 10,000. अब गौर से देखें जी, अब फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख दी. अब ऑटोमेटिकली दिस 10,000 वुड बिकम ओपनिंग. अब यहाँ पर फिर आ जाए, अब यहाँ पे क्लोजिंग, मे का क्लोजिंग कितना होगा? मे का क्लोजिंग किस तरह? 20% of what? Of sales of what? Next month, which is June. So 20% of 30,000. So 20% of 30,000 equals 6,000. अब ये 6,000 अगले महीने का क्या बन जाएगा? ओपनिंग. ये लें ओपनिंग. इस महीने का क्लोजिंग क्या होगा? इस महीने का क्लोजिंग जुलाई 20% ऑफ जुलाई सेल. जुलाई की सेल 25, इसका 20% 5,000. ये अगले महीने का क्या बन जाएगा? ओपनिंग. इस महीने का क्लोजिंग क्या होगा? अगस्त का 20% 3,000. सब लिख दिया. अब आराम से ये फिगर फाइंड आउट कर सकता हूं. किस तरह? सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. सेल्स 20 प्लस क्लोजिंग 10, 30 माइनस 4 26. टू बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ओके. यहां पर आ जाए, सेल्स प्लस क्लोजिंग 56 माइनस ओपनिंग 46. फिगर चेक करते जाए, गलती ना हो जाए. सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 29. ठीक, टोटल को फिलहाल छोड़ देता हूं. यहां पर आ जाए, सेल्स प्लस 3 28 माइनस 5. सारा क्लियर? सारा क्लियर? सारा क्लियर क्लास? हाउ वुड यू फाइंड आउट दीज फिगर्स? अब बताएं. टोटल का फिगर करें 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 करें. 26, 46, 29, 101, 101,000. 101,000 तो आपने सबको रोल करके लिख दिया. मैंने कहा सही है, बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात मानता हूं. गुड. हाउ वुड यू चेक इफ दिस इज करेक्ट और नॉट? यही फॉर्मूला लगाएं. यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग क्या लिखूं? ये सारा प्लस करें. करें ना, मुझे बताएं ना. करें. 20,000 opening है सर. 20,000 ओपनिंग है. क्लोजिंग क्या है? Closing 21. चेक करें, ये इसी तरह बन रहा है. 100 प्लस 21 माइनस 20 इक्वल्स 101. सही है? सही? क्लियर? क्लियर? आंसर सेम आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही है.
बिल्कुल सही, चेक कर लें। एक 5 मिनट दे दे, चेक कर लें। 1 मिनट दे रहा हूँ आपको। 10 सेकंड। सही है, सही है, गलत है। अब मैं बता दूं क्यों गलत है, अब मैं बता दूं क्यों गलत है, और सुने। आपका आंसर सही आ रहा है लेकिन आपकी वर्किंग गलत है, आपकी वर्किंग गलत है। क्यों? व्हाट आर द सेल्स फॉर द क्वार्टर? 1,01,000, सेल्स फॉर द क्वार्टर, 9,05,000, सेल्स फॉर द क्वार्टर, 9,04,000, सेल्स आपने कितनी की है पूरे क्वार्टर में? 1 लाख सेल्स पूरे क्वार्टर में की, ठीक है, वो फिगर तो सही है, वो सही है। ये क्या फिगर है? ओपनिंग। व्हाट इज द ओपनिंग इन्वेंटरी फॉर द क्वार्टर? व्हाट इज द ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ द क्वार्टर? 30,000, ऑफ द क्वार्टर, ऑफ द क्वार्टर 4,000, 4,000। वाई? ऊपर लिखा हुआ है सर, ऊपर कहां पे लिखा हुआ है? 31, ये क्या लिखा हुआ है? क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? अप्रैल, अप्रैल में। अप्रैल में ओपनिंग क्या थी? 4,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अप्रैल के मंथ का ओपनिंग कितना है तो आप मुझे क्या कहेंगे? 4,000। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वार्टर का ओपनिंग क्या है तो आप मुझे क्या कहेंगे? 4,000। आपने कितना लिखा? 4,000। ओके। व्हाट इज द क्लोजिंग फॉर द क्वार्टर? 5,000। क्यों? क्योंकि क्वार्टर एंड कब हुआ? जून में। तो जून में क्लोजिंग कितना था? 5। तो अगर जून में 5 क्लोजिंग था तो क्वार्टर में भी 5 क्लोजिंग होगा। अब जरा चेक करें, प्लस माइनस 100 प्लस 5 माइनस 4 101। दैट्स द वे टू डू। आंसर सही था लेकिन कैलकुलेशन गलत थी आपकी। आपने ओपनिंग लिखा था कुछ और, प्रोडक्शन जो करना है वो सही। क्लियर सो फार? क्लियर सो फार? क्लियर सो फार? ओके। नहीं नहीं, अभी कहाँ पे? अभी तो हम काम कर रहे हैं। ओके। व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्शन फॉर मे? रिक्वायर्ड प्रोडक्शन फॉर मे? 46, मे 46. So your answer is B. Right? Clear? So we've done how many budgets? 3. Sales, production 2. कैश बजट का आपने थोड़ा सा पोर्शन किया, अब इसके बाद और भी रहता है बहुत। कैश बजट आखिर में पूरा बनेगा, ठीक है? ओके जी। सो नाउ वी हैव डन 2 बजट्स। हमने कहा सबसे पहले वी विल डू सेल्स, आफ्टर दैट वी विल डू प्रोडक्शन, आफ्टर दैट वी विल डू डायरेक्ट मटेरियल। सो लेट्स मूव ऑन टू डायरेक्ट मटेरियल। कोई प्रेजेंटेशन करना चाह रहा है? Yes, sir. आई कैन ओनली अलाउ 1। यू हैव 5 मिनट्स। स्टॉप। Sir, second.